Assalamu alaikum everyone, this is Riza, your host and welcome to the Legacy Abroad Odyssey. आज का एपिसोड सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, it's a journey, it's a weekend and honestly it's a lesson for those who's dreaming big. Today we have honorable guest here with us who is pillar behind the legacy. और उनका मिशन सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं, it's to empower students globally. So let's give a warm welcome to the man behind the mission, Mr. Adil Yassin, the director of Legacy. Welcome to the show, sir. Thank you so much for having me, Siza. कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm very fine. All right. So would you love to hear from you in your own words, who is Adil Yassin? So basically, Adil Yassin is a young, energetic entrepreneur who is trying to bring a difference to this beautiful city. I have lived my whole life here and I'm really working hard to contribute my small part to this beautiful city. So let's start from the start. Sure. जब लेगेसी सिर्फ एक आइडिया था, from the Legacy School and International College, then Legacy Study Advisors, then LESA. So vision क्या था आपका, sir? Basically, legacy, the word legacy, it was not generated by me. It was my dad who started this name in 2007. This name came into being from a commercial real estate प्रोजेक्ट लेगेसी टावर और इवेंचुअली उसके अंदर पोर्टफोलियो में डिफरेंट चीज़ें ऐड करते गए हम लोग. वी स्टार्टेड विद द स्कूल के बाद कुछ टेक्सटाइल्स के थे एंड अल्टीमेटली लेगेसी स्टडी एडवाइजर्स केम इनटू बीइंग. सो जो लेगेसी नेम है वो एक लेगेसी की तरह ही कंटिन्यू होते जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. Okay, sir, what was one of the biggest challenge you faced in your early days? And how did you overcome it? There were many challenges. Different fields के different dynamics होते हैं. So first of all, the biggest challenge which I faced was कि जिस इंडस्ट्री में स्टेप इन भी कर रहा हूँ एजुकेशन के अंदर, there were giants who were already existing in this market. काफ़ी सारे big names थे and then of course with big names they create barriers to entry and we have to overcome that. We have to do our own research. We have to build our own programs enrooted from our own institute. तो उसमें काफ़ी टाइम लगा हमें. But the good thing is कि जितना हम चीज़ों को refine करते गए उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा ownership हमारी बढ़ती गई चीज़ों के ऊपर. So ultimately as we are talking about legacy study advisors, ये भी आइडिया जो जनरेट हुआ है ये थ्रू इंटरनल वर्किंग के जनरेट हुआ है because we wanted to have a USP, unique selling point of our institute, and that's how this idea came into being. Sir, you have established platform like LESA, जैसे मैंने बताया Legacy School, College. So is this just a business journey or there are deeper mission behind everything you building? Definitely जो ये field है education की ना, it is entirely different from other business domains. अगर आप इसको as a business या monetary terms में सिर्फ operate करेंगे, I believe this is not the right platform for you फिर. जो लहजा है स्पेसिफिकली, लेट्स टॉक अबाउट लहजा फर्स्ट. लहजा इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी यूथ है जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के या मेट्रिकुलेशन के, नॉट एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड विद अ स्टेबल इनकम. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप 1, 2 या 3 महीने लगा के कोई ऐसा स्किल सीख लें जिससे अल्टीमेटली आप ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिली का रोजगार भी इंश्योर कर सकें. और ये बहुत डिमांडिंग है क्योंकि स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं आज के दौर. अभी रिसेंटली जो बजट है पाकिस्तान का 2025-26 का, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर पता लगी है कि 60% जो चीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट करी वो सर्विस सेक्टर है. और आपको पता है कि सर्विस सेक्टर के अंदर फ्रीलांसिंग इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स है. बिल्कुल. तो ये लहजा इज़ बेसिकली एक सोर्स बनेगा अल्टीमेटली जो फ्रीलांसर्स, ना सिर्फ फ्रीलांसर्स बल्कि टेक्निकल लोग जो कि आईटी की इंडस्ट्री में आपको चाहिए, ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब आप पहले बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, देन कॉलेज में, फिर लहजा से उनको स्किल्स भी दिलाते हैं, देन अब्रॉड भेज देते हैं. Yes, it is a one-stop solution for everybody. Great. How do you personally define success in your business and life? A very good question. Business success is definitely very clear. इसमें आपकी enlargement, financial stability और different चीज़ें होती हैं. I would like to talk about the personal success, जो मैं समझता हूँ कि क्या चीज़ है. I believe जो personal success बंदे की है, the biggest and the most important thing is peace of mind. Exactly. If you are at a very comfortable place mentally, it means you are doing right in life. Alongside that, I believe that you can't be too busy in your work. You have to have a very positive and very balanced work-life balance. आप ये नहीं हो सकता कि सारी ज़िंदगी ही काम में लगें. You have to have a balance between your family time, your work experience, and at the same time your social life. So for me, success is basically being proud of yourself, your parents being proud of you, and at the same time you trying to contribute to the society in one way or another. जो लोग आपके साथ आके जुड़े हैं आप उनका भी भला करें, ना सिर्फ कि आप अपना देखें.
सर आप एक्सट्रोवर्ट को कॉन्फिडेंस कहेंगे और इंट्रोवर्ट को कहेंगे कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है या नहीं, आई थिंक इट इज़ अ पर्सनल चॉइस. कॉन्फिडेंस कितने दुनिया में ऐसे कितनी मिसालें हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं बट दे आर डूइंग अमेजिंग. तो इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स मोर अबाउट व्हाट यू प्रेफर इन लाइफ. सम पीपल लाइक टू शेयर अ लॉट, सम पीपल लाइक टू टॉक अ लॉट, सम पीपल लाइक टू कीप इट टू देमसेल्व्स. तो इट्स अ पर्सनल चॉइस, नॉट अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, आई बिलीव. ठीक है. अब स्टडी अब्रॉड की बात कर लेते हैं. श्योर. Why do you believe study abroad is a life-changing experience for students? स्टडी अब्रॉड, मी पर्सनली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, जब इंसान एक स्पेसिफिक सोसाइटी से निकल के बाहर एक्सप्लोर करता है डिफरेंट चीज़ें, देन यू केम टू नो कि दुनिया में क्या चल रहा है. अगर आप एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यू वुड नेवर नो कि बिल्कुल. कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने सारे माइंडसेट हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर डिफरेंट ना. तो बंदे को अपने आप के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. आपको ये पता लगता है कि यार मैं कितना कैपेबल हूँ बाकियों की नज़र के अंदर भी, ना सिर्फ के यहाँ पे. और इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए कल्चर्स हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं. एंड आप सिर्फ बाहर से पढ़ के नहीं आते बल्कि आप वो चीज़ें अपने साथ लेके आती हैं. और जब आप वो चीज़ें यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करते हैं पर्सनल लाइफ में या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिलते हैं डिफरेंट तरीके से आपके लिए. बिल्कुल. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है कि व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन स्टूडेंट्स बिफोर एंड आफ्टर गोइंग अब्रॉड? अ लॉट. द फर्स्ट थिंग इज द कॉन्फिडेंस लेवल. जब आपके सर पे पड़ती है ना तो आपको करनी पड़ती है. अब्रॉड जाके ही आपके सर पे पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह से है. इवन जो मेरा छोटा भाई है अहमद, ही इज़ क्वाइट अ पैम्पर्ड किड, आप उसे कह सकते हैं. तो ए लेवल्स तक वो यहाँ पे था अपने. तो उसको ये हमने खुद देखा, अब एक्सपीरियंस ऑन द फर्स्ट हैंड कि हर चीज़ बतानी है, हर चीज़ करके देनी है वो. बट नाउ इट्स बिन 1.5 year. He did his foundation and now he's currently doing bachelor's in the city university UK में. तो काफ़ी चेंज है. He knows how to take care of himself and at the same time he knows how to behave in a surrounding of people. और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं. इंडिपेंडेंसी आ जाती है. You know how to plan your day. You know how to keep a track of your health और बाकी एक्सपेंसेस का भी अल्टीमेट. यहाँ पे हर चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता होगा, लेकिन वहाँ पे वो सब खुद कर रहे हैं. वहाँ पे खुद कर रहे हैं. बड़ी तो करनी पड़ेगी, ऐसे ही है. ओके. सर एक स्टूडेंट के लिए स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस बहुत डॉन्टिंग होता है. क्या IELTS, SOP, वीज़ा फाइलिंग, तो लेगेसी स्टडी एडवाइजर्स किस तरह से हेल्प आउट करता है? देखिए, जो हमारा विजन है ना लेगेसी स्टडी एडवाइजर्स का, वो इट्स वेरी क्लियर. अगर कोई बच्चा यहाँ पे आ रहा है, इट्स आवर ड्यूटी, बल्कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको गाइड करें फ्रॉम स्क्रैच. अगर किसी को ये भी नहीं बताना कि कौन सी डिग्री है या फिर कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट मिलना है, दैट इज़ इंटायरली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस बच्चे को 0 to 100 लेके जाना, उसको गाइड करना और टाइमली गाइड करना, ये हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह. और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, स्टडी अब्रॉड जब बंदा प्रोसेस स्टार्ट करता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इतने चैलेंजेस आएंगे. बट विद टाइम जैसे आपको पता लगता है कि रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं और आए दिन तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, आपको पता है, वेदर इट बी UK, ऑस्ट्रेलिया और USA और यूरोप, व्हाटएवर इट इज़. तो हम उसको अप टू डेट चीज़ों का बताएंगे, टाइमली बताएंगे और उसके साथ साथ उस पर छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ एज ए टीम वर्क करेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल. व्हाट मेक्स अ कंसल्टेंसी ट्रूली स्टूडेंट फोकस्ड? जो विजन है ना एक किसी भी बिज़नेस के पीछे, इट रन्स फ्रॉम द वेरी टॉप. तो मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि हम इन बच्चों को फैसिलिटेट करें. जितना फैसिलिटेट करें उतना कम है इन बच्चों के लिए. और काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमसे अटैच हैं फॉर लाइक 15-20 years. तो वो हम पे इस चीज़ों के लिए काउंट करते हैं. दे ट्रस्ट अस, दे बिलीव अस. एंड पिछले 10-15 years से अगर हम उनको सेटिस्फाई करके चल रहे हैं अपने साथ, उनके बच्चों को सबसे पहले ये अल्लाह की करनी है कि उनके बच्चे एक प्रोडक्ट बन चुके हैं. उसके बाद अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी कि हमारी उसके अंदर एक छोटी सी इनपुट है उनको रिफाइन करने में. ओके. व्हाई इज करियर काउंसलिंग स्टिल अंडररेटेड इन पाकिस्तान? क्या रीज़न? इसकी बहुत सारी रीज़न है. करियर काउंसलिंग जो अंडररेटेड है, जैसे कोई चीज़ यहाँ पे चलना शुरू होती है ना तो उसको हर बंदे का होता है कि यार यही काम करना है मैंने. ये काम हमारा पहले रियल एस्टेट के साथ हुआ, रियल एस्टेट के बाद ये काम हमारा कुछ फेडरल लेवल पे चीज़ें उनके साथ हुआ, और अब कंसल्टेंसी बिजनेस में लोगों को बहुत सारा चाम नज़र आया. तो इसमें हर तरह के बंदे ने अपनी इनपुट दी. अगर किसी की एजुकेशन का बैकग्राउंड है या नहीं है, हर तरह का बंदा इसमें दिया. इस वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस आए क्योंकि लोगों का ट्रस्ट इसमें ब्रेक हुए. काफ़ी सारे ऐसे कंसल्टेंट्स बैठे हैं हमारे अपने शहर में, काफ़ी सारे बैठे हैं अपने सराउंडिंग्स में बैठे हैं जिनको कि आइडिया नहीं है कि करना क्या है. बट जस्ट बिकॉज दे नो कि यार इसके अंदर मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट है, हम स्टूडेंट से कुछ ना कुछ लेंगे, यूनिवर्सिटी से कुछ ना कुछ लेंगे, तो वो बच्चों को ट्रैप कर लेते हैं. बट हमारा फोकस है कि ऐसे जो बिजनेसेस हैं जो सही मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं ऑपरेट करें, हम उनको हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह. ना सिर्फ उन्हें हाईलाइट करेंगे बल्कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये हमारी इल्तिजा भी है कि इस पे चेक एंड बैलेंसेस इस इंडस्ट्री पे मजीद लगाई जाएँ ताकि जो बच्चा आ रहा है वो प्रॉपर तरह से उसको सर्विस मिले, ना कि उस बच्चे से नुकसान भी हो और वो दिल बर्दाश्ता भी हो. सियोदा, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हुए. पिछले दिनों IELTS की एक स्टूडेंट थी हमारे पास, वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी. वो कह रही थी पहले मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, इतने पैसे मैंने दिए थे, उन्होंने मुझे बाद में ब्लॉक कर दिया.
तो इस वजह से हमें भी काफ़ी चैलेंजेस फेस नहीं, मैंने खुद फर्स्ट हैंड ऐसी चीज़ें देखी हैं कि कुछ कंसल्टेंट्स बच्चों को ये भी कहते हैं कि यू डोंट हैव टू पे द फीस, आप सिर्फ हमें फीस पे करें, यूनिवर्सिटी की फीस भी आप छोड़ेंगे, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। मतलब आप डायरेक्ट कंसल्टेंट को पैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ फी पे करनी है तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे कर। हर चीज़ का चैनल क्लियर है, फ्लाई वायर प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट फॉस्टर प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू अपनी यूनिवर्सिटी को पे करना है। लोग वो पैसे खुद रख के यूनिवर्सिटी को भी पे नहीं करते और बच्चे को ये कहते हैं कि आप डेफर हो गए हैं और बच्चे का बहुत नुकसान होता है। आपका ये नुकसान हो गया, उसमें आधे पैसे इसमें लग गए, आधे पैसे इसमें लग गया और बच्चा जो है बेचारा। हाँ, वो फैमिलीज जो सी है ना वो डिस्टर्ब होती हैं फिर। बिल्कुल। ओके, सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज डिजिटल प्रेजेंस इन टुडेज एजुकेशनल हिस्ट्री? मतलब कोई भी बिजनेस है या कोई कंसल्टेंट है, सोशल मीडिया के बगैर वो ग्रो कर सकता है या नहीं? It's very hard. 21st century में the only marketing tool you have is social media. Everybody, चाहे वो एक 5 साल का बच्चा है या चाहे वो एक 50, 60, 70 years का बंदा है या बंदी है, everybody has phone, everybody is consuming data on a daily basis. तो I believe कि जो मेजर जो सा है लोगों का फोकस डिजिटल मीडिया के ऊपर है, हमारा भी इसी तरह से है। वी ट्राई कि जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, हम उसको अपने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वाज़े विजिबल करें ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे आने के क्या फ़वाइद हो सकते हैं। ठीक है, तो सर इस वक्त अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है, अनश्योर हो अपने करियर को लेकर, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? कम टू अस, आई एम हियर, माय टीम इज हियर, कम टू अस, गिव इट अ ट्राई। किसी तरह की भी डिफ़िकल्टी है, कन्फ्यूजन है, जस्ट गिव अस अ चांस। आप आएँ, 1-on-1 मीटिंग्स करें। अगर आपको उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो डेफिनेटली आप जो सा है बाकी मार्केट एक्सप्लोर करें। बट आई एम 100% श्योर अल्लाह के हुक्म से कोई बंदा यहाँ पे आएगा। एज यू नो, आवर प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर सलमान, हु हैज़ बीन इनटू दिस फील्ड फॉर लास्ट 15 ईयर्स, 15 साल एक काफ़ी टाइम होता है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट हैंड एक ब्रिटिश इंटरनेशनल फर्म के साथ है। तो आई बिलीव कोई बंदा भी यहाँ पे आता है, जैसे आपको पता है हम नाउ वी हैव स्टूडेंट्स कमिंग हियर ऑन डेली बेसिस, और कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो यहाँ से कंफ्यूज होकर जाता है। आते ज़रूर कंफ्यूज हैं लेकिन जाते हैं यहाँ से विद नॉलेज हैं। ठीक है, so what's something people misunderstand about success or leadership? I think there are different things. Success के अंदर some people think that success is just, you know, it's about money, but it's actually not. Success, there are a lot of things success के अंदर जो आती हैं। अगर आप किसी का हक लेके उसे सक्सेस समझते हैं, it is not success. It is something that you have to pay back ultimately. So success is basically for me, it is doing the right things at the right time for the right people. And ultimately उसका इंसान जो मेहनत करता है अल्लाह उसका फल तो ज़रूर देते हैं। Okay, next question is, why do you want your legacy to be in future? What do I want my legacy to be? जी, अल्हम्दुलिल्लाह लेगेसी अभी भी एक My own, है, yeah. लेकिन इन फ्यूचर आप क्या चाहते हैं? I think you can't plan out things. For me, it's more about just being in the moment. जो responsibilities अभी हैं उनको कोशिश करें फुलफिल करने की, और 10, 15, 20, 25 साल बाद देखेंगे कि क्या किया अल्टीमेटली। सो इट्स जस्ट टेकिंग वन थिंग एट अ टाइम एंड फोरकास्टिंग इंशाल्लाह खुद ब खुद हो जाएगी, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। होपफुली। अच्छा, ओके, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं सीरियस टॉक से ब्रेक नहीं बल्कि वो क्वेश्चंस खत्म हो गया, वो हमारी फन एक्टिविटी है और उसके बाद फिर पॉडकास्ट डन। एब्सोल्युटली। व्हाट पीपल अज्यूम बट इट्स रॉन्ग? आपके बारे में कुछ लोगों की ऐसी असम्पशन हो जो बिल्कुल गलत हो? फनी about your personality. How would I know about people's assumption? I'll talk about my friends. So initially जो मेरे friends हैं उनका कुछ कहना है कि I give a very restricted vibe, कि I'm not talkative, I'm not easy to contact with. पता नहीं टीम किस बारे में क्या रहा है, but I'm actually I'm quite, you know, I'm quite talkative and it's very easy to communicate with me. At least that's how I feel. देसी पेरेंट्स एनर्जी, मतलब आपकी फैमिली का सबसे क्लासिक देसी पेरेंट डायलॉग जो आज भी आपको सुनने को मिलता है, बचपन से आप सुन रहे हैं और अब तक? रोटियां खा लो तो लस्सियां पी लो। आई गेस दैट्स इट। देसी मॉम्स हैं वो बहुत कंसर्न होती हैं और मेरी अम्मा इज़ अ प्योर देसी मॉम, तो वो जितना डाइट कॉन्शियस हम होते हैं लेकिन वो पराठे और वो लस्सियां जो उनसी हैं उनसे जान नहीं छूट रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ योर लाइफ वाज अ मूवी व्हाट वुड बी द टाइटल, और एक्टर कौन होगा जो आपका रोल प्ले करेगा? Okay, I think it's too early, but अगर कोई life ऐसा movie हो, it would be like my adventurous eyes, because I believe I've had an adventurous life so far, whether it be different, serious talk नहीं कर सकते ना, different experiences, personal और private level के ऊपर, and somebody who should play me, let me think about it. Who's the guy who played Batman? I don't know. Christian Bale is a really good actor. Yeah. अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बात करें, पाकिस्तानी actresses के actor,
कोई भी कर ले, इतने पाकिस्तानी एक्टर कुछ खास तो मुझे वैसे भी नहीं लगते हैं, मैं इतना फॉलो भी नहीं करता, वैसे ओवरऑल भी मूवीज इतना लाइक नहीं करता। एनीवन, आई डोंट रियली केयर। अच्छा, आपने भी कहा कि आप बहुत एडवेंचरस है, तो कोई ऐसा आपका लाइफ का कोई मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, जो आपने एडवेंचर किया? Yes, I think skydiving was really good. Oh, really? Yeah, it was 20. No, it was in Cairns, Australia, Quebec. It was back in 2019. So we went on a field trip, me and the boys. It was I was with Willis. He was one of my best buddies from Kenya. Alongside we had a guy named Arshdeep. He was from India, and some other guy from France. It was 4 of us, 4 different nationalities, and we were on a road trip in a land we never went before. So once I plan bana, all of a sudden my friend Willis was like, "Yo man, you gotta do this." So I was like, "Let's try this." मैंने घर बात की. Everybody was like, "Nah, there is no chance you're doing it." Exactly. तो फिर मैंने करने के बाद उनको कॉल की थी कि अब नाउ आई हैव डन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ हूँ, बट इट इज़ रियली रियली एडवेंचरस। वो आपको एक प्लेन में बैठा लेते हैं एंड वो जब आपको लेके जाते हैं 15,000 फीट के ऊपर, एंड देन दे ऑल ऑफ अ सडन ओपन द डोर ऑफ द प्लेन एंड दे आर लाइक जंप, एंड एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट जंपिंग। जो भी था मुझे नीचे लेके थे, लाइक नो, देयर इज नो वे यू हैव टू जंप, बट द एक्सपीरियंस इज सर रियल। आप रियलाइज़ करते हैं कि यार कितनी खूबसूरत दुनिया और आप कितने केपेबल हैं, क्या क्या कब चीज़ें कर सकते हैं। सर, उस सिचुएशन पे आके खुल जाती है। हाँ, कुछ टाइम बाद जब आपने जहाज से छलांग लगा दी तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं ना, अगर आंखें बंद भी रखें, गिरना तो डू और डाई, फिर आप उसको एंजॉय करें। ओके, ठीक है। द मोस्ट रैंडम कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर गॉटन? That I smell nice, and I really like that compliment because I believe smelling nice is a hygienic thing actually. इफ यू हैड वन बिलबोर्ड इन लाहौर, उस पे आप क्या लिख पाएंगे? लाहौर I guess ठीक है, इन लाहौर। ओके, ठीक है। कि वैसे आपको फास्ट फूड पसंद है या देसी फूड? more देसी फास्ट फूड आई गेस खा बहुत लिए, तो अब जो सा है उसके इतने कोई बेनिफिट्स भी नहीं बॉडी को, बट कभी कभी आप कह लें कि चीट मील लेना हो तो KFC इज गुड। What's your WhatsApp group name in with all friends? वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, कुछ तो मैं नाम ही ले सकता, बट जो मुझे मैसेज भी आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, द नेम इज डियर फ्रेंड्स। Dear friends. डियर फ्रेंड्स बहुत it's उसके अलावा हमारे और भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। वी हैव अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैडल, उसका नाम पैडल गैंग है। उसके अलावा ओल्ड मस्किटियर्स, तो ये हमारे मस्किटियर्स, ये मजे। इसमें सारे जो हमारे ओ लेवल्स के बैक इन द डेज दोस्त हैं, अभी तक उनके साथ है कम्युनिकेशन। One useless talent you secretly have? One useless talent, I guess I can move my ears. What? I like this. This is very useless, but this is with me since my birth, I guess birth. Last Google search you are willing to admit? Last Google search? Let me check. It was about the ongoing war on Iran and Israel. Israel. I don't want to name them. What's your go-to excuse to cancel a plan? That I am engaged elsewhere, probably. Okay. कभी ये नहीं कहा कि मम्मा नहीं मान रही है या पापा नहीं? नहीं, वो स्टेज चलेगी ना, अब लोग मानते नहीं इस बात को, पहले यूज कर ली। ठीक है। What's the most favorite song on your playlist? These days I'm listening to Heartbreak Kid. It's a really good song. I do like Talha Anjum and these Pakistani upcoming singers and rappers. So that is it. What would you call first if you won a jackpot? Who would I call first? Probably my accounts team to ask them how to manage this. फैमिली में से कि बताना है किसी को, ये तो आपने मैनेज करने के लिए क्या था कि भाई मैनेज से आपने बताना है किसी को कि भाई मुझे जैकपॉट मिल गया। Of course family, probably I guess my mom. If you could time travel for one day, past या future, किस वक्त में जाना पसंद करेंगे और क्यों? I think past. मुझे फ्यूचर तो आई जाना है, पास्ट के अंदर मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का, जैसे हिस्ट्री के ऊपर है ना, डिफरेंट चीज़ों पे। इवन लास्ट नाइट आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, औरंगजेब की डॉक्यूमेंट्री थी, द मुगल एम्परर। तो आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय देयर लाइफस्टाइल, उस टाइम पे क्या चलता होगा दुनिया के अंदर। आई वुड लाइक टू सी दैट। Okay. Which app do you open without reason every hour? ट्विटर, probably, yeah. I would WhatsApp. नहीं, मोस्टली ट्विटर। विदाउट व्हाट्सएप एज अ रीजन, ट्विटर का कोई रीजन नहीं होता ना, इट्स जस्ट टू सी द जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Thank you so much sir for coming. आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी हमारे लिए, होपफुली देखने वालों को भी पसंद आई हो। नहीं, सो नाइस ऑफ यू, यू रियली कनेक्टेड अ वेरी वैल्यूएबल पॉडकास्ट, एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आउट देयर हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर हो ये। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू कम सी अस, दे नो वेयर वी आर and we'll share the location as well, and we are here to help, whether it be educational journey, whether it will be IT skills or foreign education. So as I said, one stop solution. Yeah. Thank you sir. No. अल्लाह हाफिज़। अगर आप भी अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं या ग्लोबली ग्रो करना चाह रहे हैं
तो ये एपिसोड आपके लिए एक रिमाइंडर है. Start today, believe in yourself and seek the right guidance.